तो फिक्स भी नहीं है। आज मैं बनवारी में खड़ी हूँ, आपको मुझे पीछे दिख रहा होगा। यहाँ पे गुड़गांव और फरीदाबाद का कूड़ा रोज यहाँ पे 2200 टन फेंका जाता है इको ग्रीन की तरफ से। सूखा और गीला कूड़ा यहाँ रोज डाला जाता है। अब इसके प्रदूषण से हमारा AQI 400 से ऊपर हो गया है, लेकिन अब ये और उसको बढ़ाने के प्लान में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आज खट्टर साहब इनॉग्रेट कर रहे हैं। आज वो ऑनलाइन इनॉग्रेट कर रहे हैं, यहीं गुड़गांव में आए हैं लेकिन भंडवारी नहीं पहुँचे हैं। और इसकी वजह से जो हमारी हवा है और ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगी और हमारे बच्चों को सांस और नहीं आएगी। देखिए, ये जो वायु प्रदूषण है वो हमारे बच्चों को ख़त्म कर देगा। आप सबसे निवेदन है, आप इसमें साथ जुड़िए, आवाज़ उठाइए और कहिए कि हमें यहाँ पे एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट नहीं चाहिए। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, उससे दिखाओ। सुशीला जी बंद करके मुकेश यादव जी को फ़ोन करो। बोर्ड तो दिखाओ, बोर्ड तो दिखाइए। Why are you all here today? To protest against the waste to energy plant. We don't want it. Why do you not want it? Because it's going to harm our children from further whatever. मतलब आज की डेट में 400-500 ऑलरेडी AQI है, तो अगर इसको करेंगे तो कहाँ 600-700 पे जाएंगे हम? कहाँ जिएंगे, किस शहर में जाएंगे? हर शहर का तो यही हाल है। We can give our children is the cleaner air to breathe. The main reason is we want the clean air so that we can breathe. Our children get a better life. आप क्यों आए हैं यहाँ पे? इसको जो जल रहा है, प्रदूषण होगा, वायु में प्रदूषण फैलेगा, उसको रोकने के लिए आए, इसे यहाँ से हटाने के लिए आए। हम लोग यहाँ पे ये जो कूड़े का जो ढेर लगा हुआ है, बनवारी गांव के लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान पहले ही हैं। पर्यावरण बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। सरकार को देखना चाहिए, खट्टर सरकार को देखना चाहिए ना कि किस तरह से पहले ही गुड़गांव का जो वातावरण है वो पहले ही दूषित इतना है, उसको और ज़्यादा दूषित करके लोगों का जीना हराम ना करें। यहाँ के लोगों में कैंसर की जो बीमारी है वो हर दूसरे घर में मिल रही है, बच्चे सब परेशान हैं। सरकार को दिखाई क्यों नहीं देता है कि वो हमें इस तरह से परेशान ना करें। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नेक्स्ट टाइम अगर हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, पूरे गाँव के साथ इकट्ठा होंगे और उन्हें जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का। ये तो बहुत। Why are you here today? Look, I'm a victim of air pollution. I have been working with government, with media to raise awareness about air pollution, the hope that awareness precedes change. In the 7 years that I've been working on this, by the way, when I say I'm a victim of air pollution, I acquired bronchial asthma in 2013, which is what made me into a clean air activist. All I've seen is these band-aid fixes and a lack of a comprehensive strategy. It took us 5 years to get the Delhi government to put clean air as part of their election manifesto, and we achieved that in 2020. And all the governments promised us clean air in NCR. And all we are seeing is just counterproductive measures. We are wasting money on smog towers. We are wasting money on waste to energy plants. This is just going to create more smoke. Instead of closing the sources of emissions, you're just creating additional, additional carbon footprint as well as additional sources of pollution. So, we're on to you. We know what you're doing. We're going to call you out on it. Let's work together and bring some positive change as opposed to doing all this hogwash. That's my only request. Why are you here, Anna? I'm here as a concerned mother that we have been protesting against mixed waste dumping, against Banwari landfill, against the WTE for so many years. And the air pollution is actually killing us, our children and their future. So we are really earnestly requesting the government, Mr. Khattar's government, to not do these band-aid solutions of WTE. It has not worked anywhere in India, anywhere in the world. So why are we following a fake technology to show that you're doing something when actually you're not doing anything?
There are enough solutions. Science has given us enough solutions. All we need to do is follow that. If we are honest, we will follow that. We expect you to be an honest government to actually care about air pollution and the health of our children. Volume on, sing for a volume on post. Facebook Live. Why are you here, Vijay? Well, it's evident why I'm here. Government's plan to used to live in Sukhdev Vihar. And the incinerator there is creating a lot of problem. मुझे लगता है कि ये इतने बड़े पैमाने पे होना नहीं चाहिए और हमारे पास अभी तक कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल नहीं है जिसमें हम कह सकें कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इज़ अ सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ ऑल पैरामीटर्स कि एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, ब्लीचिंग भी नहीं होगी और हमारा वेस्ट भी कंबशन इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम। तो आप जैसे ही जलाएंगे तो वो चाहे कितने भी कंट्रोल एनवायरनमेंट में जलाएंगे तो पोल्यूशन की संभावना है और हम तो झेल रहे थे सुखदेव विहार में। तो मुझे लगता है इतने बड़े पैमाने में तो बहुत बड़ा नुकसान होगा एयर क्वालिटी के लिए। हमारे जो प्लानर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि rather than reducing waste and organically treating the waste, इस तरह से ना करें, शॉर्टकट मेथड ना निकालें क्योंकि शॉर्टकट में कोई सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू। तो लोगों की आवाज़ मैं आप तक पहुंचा रही हूं क्योंकि कई बार हमारी आवाज़ दब जाती है। हम बस यही बोलने आए हैं कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट गुड़गांव की हवा को और भी ज़्यादा प्रदूषित करेगा। अगर आप साफ़ हवा नहीं दे सकते, कम से कम और दूषित हवा तो मत करिए। खट्टर साहब, आपसे निवेदन है, आज इसको इनॉग्रेट करने की बजाय इसको बंद कैंसिल कर दीजिए और कुछ वर्केबल सॉल्यूशंस लाइए ताकि गुड़गांव की हवा सच में साफ़ हो सके, हमारे बच्चों को साफ़ हवा मिले और ये जहर हम जीना बंद, इस जहरीली हवा में हम सांस लेना बंद करें। जय हिंद।